Hello, beautiful souls. So, nowadays, many people were manifesting things, but still, these manifestations were not coming true as they were putting their hardest efforts they can, but still, the manifestation was a manifestation or an imagination. Maybe you would also wondering why everything that is demanded to have or to do manifestation was done by you, but still the manifestation was on the way or where you were not getting it. So today we would be sharing or covering the reasons why our manifestation was not true yet. Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfish and Warm, to let others even unlock their life abundance and happiness. So if you are new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now let's roll on to the video. Now let's quickly have a look over what we would be covering in our today's video. So, if I truly say I have experienced 8 reasons and one bonus reason was there. So, as well, I would be covering 8 reasons and one bonus reason which plays the crucial role. So, be with us till the end of this video as the special bonus one was at the end. Listen to these one to get what yours and how you could correct it. Well, there are several reasons behind the scenes that why the universe was not giving us what we are desiring for. Before we begin to know the reasons why the manifestation isn't our reality, let's first discuss that exactly what manifestation is. So for me, manifestation is a way to direct your mind towards your goal. It could be through affirmations, visualizations, or some practical practices. But the main goal is to turn the thoughts or desires into reality. Now, what could block our manifestation? Was it with us? Or is it about external factors? Before I begin to reason, I would like to say or to tell one thing which is very important regarding manifestation, that our connection with inner self and universe is necessary. It just helps us to connect clearly and tell our manifestation better. So if you don't connect with yourself, if you don't follow spirituality, or you don't even know the correct meaning of spirituality, just firstly try to understand that. Let's not waste the time and jump over the reasons why our manifestation was not our reality yet. So, the very first reason would be lack of clarity. If your desires are keep changing every day, you begin manifestation. What you see to others or out in the reality of over this materialistic world. So, I can explain it with an example. Suppose you have begun to manifest things. आपने manifestation शुरू की किसी एक particular thing के साथ, मतलब जैसे आपकी सोल, suppose आपने soulmate manifest करना शुरू किया. आपने सोचा आपको soulmate चाहिए. Now अब आपने कुछ भी देखा अपने friends के अराउंड, अपने रिलेशंस में कहीं, या फिर कोई पिक्चर कोई कहीं देखा आपने कि ये भी एक ट्रेट होती है, लाइक दिस लुक्स वेरी रोमांटिक, वेरी फैसिनेटिंग, सो आपने अपनी मैनिफेस्टेशन में वो भी जोड़ लिया. ऐसे करते करते आपकी जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन थी वो आपने पूरी की पूरी बदल दी. यानी कि पहले आप मैनिफेस्ट कर रहे थे सोलमेट, अब आप एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करने लगे हो जो रोमांटिक भी हो, फैसिनेटिंग भी हो, बिल्कुल एक हीरो की तरह हो. सो दिस इज नॉट द वे व्हेन विद एक्चुअली द यूनिवर्स कुड कनेक्ट विद यू. विद दिस the universe or your subconscious mind might not know what to work towards. So, clear, specific goals are easier to manifest. Don't be a daydreamer. Be the one whom you are. And then manifest the things what you really want. So, the first reason was covered, which was lack of clarity. Now, let's move on towards the next reason, which is second reason, lack of actions. Manifestation isn't just about thinking positive thoughts. It requires taking concentrate actions towards your goals. अब इसे हिंदी में एक हाथ में सरसों उगाने वाला कहानी भी कहा जाता है कि चाहिए तो सब कुछ है पर एक्शंस उतने नहीं लेने, या कह लो मेहनत उतनी नहीं करनी. तो एक बात जान लो, विदाउट एफर्ट्स मैनिफेस्टेशन रिमेन्स अ मेंटल एक्सरसाइज विदाउट रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स. सो गो विद अ प्रैक्टिकल प्लान, then begin to manifest. First, begin your manifestation with a kind of mind map.
where you plan at what and how much you have to invest your energy and how. This is the best way to manifest anything. Basically, keep your little actions but keep it with consistency. भले ही छोटे छोटे काम करो, मतलब जो भी तुम्हें चाहिए उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले लो, पर फिर भी उसको कंसिस्टेंट रखो। एक एग्जांपल भी जान लेते हैं इसके लिए। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग ग्रोथ इन बिजनेस, बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, देन फर्स्टली रियलाइज हाउ मच एट वेयर एंड हाउ you want to be. Write them all over a paper. The next, find what actions or changes it will require to accomplish it. Then divide your actions as a plan for growth. Then have your actions and manifestations align. I would like to say one thing here, which is that to do that much which is suitable to you, basically which uplift your energy, not this much which drains your whole energy. Take actions according to your situation, but keep consistent or be consistent. ये नहीं कि आज किया कल किया फिर परसों छोड़ दिया कि चलो अभी बहुत थकान हो रही है, ऐसे नहीं। भले ही थोड़ा करो पर करो जरूर। अब थर्ड रीजन पे आता है कि आखिरकार क्या रीजन है जिसके कारण हमारी मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो पा रही। तो the third reason is divine timing. Sometimes what we are manifesting were reserved by the universe for a particular time, so that the thing we are manifesting should be on its particular time in our reality. The timing of our desires may not align with the timing of the universe. This often happens to us, that sometimes what we want might come later than expected, and sometimes not as we decided, but in a different way. होता है ना यार कि हम जो चाह रहे थे वो वैसे नहीं आया, बट हाँ आया हमारी लाइफ में, या उस वक्त पे नहीं आया। तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी यही हो रहा हो कि अभी तुम्हारी डिवाइन टाइमिंग ना आई हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी अभी वो फैंटेसी वाला फेज चल रहा हो कि तुम अभी जस्ट अपने ऊपर फोकस करो, कोई और चीजों पे फोकस करो, ताकि जब वो चीज आनी हो उसके लिए तुम रेडी हो। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रीजन व्हाई आवर मैनिफेस्टेशन वाज नॉट आवर रियलिटी। So the next reason is learning and growth. अभी भी मैंने बताया था ना पिछले में कि कई बार हम लोगों की लाइफ में वो चीज़ें आ नहीं रही होती है क्योंकि अभी कुछ और चाह रही है यूनिवर्स, कुछ डिफरेंट चीज़। तो वो कई बार यही होती है कि वो हमें अभी कुछ लेसन सिखाना चाह रही है, हमें कुछ ग्रो करना चाह रही है। अब इससे मैं ये भी कह सकती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम जो चीज़ मांग रहे हैं, सपोज आपको अपना सोलमेट मांग रहे हो, ठीक है, तो आप तो अपनी तरफ से अपना सोलमेट मांग रहे हो कि मुझे उसमें ये क्वालिटी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए और वो मेरा सोलमेट होना चाहिए। तो उसकी भी तो कुछ डिमांड्स होगी ना, वो भी तो कुछ सोच रहा होगा कि नहीं मेरी वाइफ में या मेरे जो भी ऑपोजिट जेंडर है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यूनिवर्स अभी आपको ट्रेन कर रही है, आपको थोड़ा निखार रही है कि आप एक बेटर पर्सन हो जो दूसरे पे डिपेंड ना हो। अब जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई एक पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब वही चीज़ वैसे ही हो, वही एक इंसान हो। मैं एक एग्जांपल दूंगी, तो सपोज कर लो कि तुम अगर अपने एक्स को कर रहे हो, तो यूनिवर्स तुम्हें यही समझाना चाहती है कि जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट, जो चीज़ जब होनी होगी वो हो जाएगी। सरेंडर कर दो, अगर उन इंसान को वो पर्टिकुलर चीज़ को जब आना होगा वो आ जाएगी। Just try to understand this, that other people's actions are not in our control. So it is more likely to be incomplete if this is your way of manifestation. यूनिवर्स करती है हमारे साथ कि हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ से हमें दूर कर देती है, ताकि वो उनको तो दिख रहा है ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है और हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ से निकलना है, तो इसीलिए वो ऐसी कुछ चीज़ें करती है। सो द सिंपल आंसर टू दिस इज जस्ट सरेंडर, और जो जैसे हो रहा है वहाँ से ओपनली उस चीज़ पे चलो बेसिकली। चलो अब नेक्स्ट रीजन पे बढ़ते हैं, विच इज ओवर एम्फसाइजिंग ऑन मैनिफेस्टेशन। व्हेन यू आर टू अटैच्ड टू द आउटकम, then this is the only reason your manifestation was not your reality, because you were pouring your whole energy, you were just day night or was giving your most of the energy to that manifestation. तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ सच नहीं हो रही है, तो ज़रूर मेरी मैनिफेस्टेशन करने की एनर्जी में कमी होगी, या कुछ तुम्हें किसी भी रीज़न से लग रहा है, तो तुमने शुरू कर दिया कि भाई अब हम सुबह दोपहर शाम रात एक बारी मैनिफेस्ट करेंगे, और पता ही नहीं लग रहा तुम्हें कि तुम अपने जो दिन का काम करने का टाइम था उस टाइम पे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई भी चीज़ को इग्नोर करके
लगे हुए हो वही विजुअलाइजेशन या कोई भी अपना मेथड यूज करके मैनिफेस्ट करने में चीज को, कि अगर मैं जितना ज्यादा मैं कंसिस्टेंट रहूंगा मैनिफेस्ट करने में और अच्छा रहूंगा उतना ज्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट होगा, तो ये भी चीज सही नहीं है, क्योंकि अति तो कभी सही हो ही नहीं ना। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, बट हाँ तुम लोनलीनेस फील करने लग जाओगे, ड्रेन फील करोगे अपने आप को, क्योंकि सारी एनर्जी तो मैनिफेस्ट करने में ही चली गई। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। फोकसिंग टू मच ऑन मैनिफेस्टेशन माइट लीड टू ignorance to the practical world। अब इसी में तुम लोग अपॉर्चुनिटीज भी मिस करना शुरू कर देते हो। अब ओवर मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो तो ऑब्वियसली तुम पर्टिकुलर चीजें मैनिफेस्ट कर रहे होगे कि इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से सब कुछ होगा, और कोई चीज ऑपोजिट वे में ही आ रही है तुम्हारे पास। जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुम्हारे पास आ रही है, पर तुम इतने ज्यादा बिजी हो गए हो अपने मैनिफेस्ट करने में कि तुम देख ही नहीं रहे हो कि जो चीज तुम्हारे पास आ रही है वो वही तो है जो तुम मांग रहे थे, क्योंकि तुमने अपना ही एक रास्ता बना लिया, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज तुम्हें नहीं मिल रही है। तो बी ओपन, बी बैलेंस्ड, अपने आप को भी सेल्फ लव दो, और अपनी जो ड्यूटीज है वो भी निभाओ। फॉलो योर सेल्फ, फॉलो सेल्फ लव एंड हैव द क्वालिटीज और योर मैनिफेस्टेशन इन यू। अब इसके लिए एक और चीज कह सकती हूँ, दैट ट्राई न्यू थिंग्स एंड बी इन योर प्रेजेंट, बी माइंडफुल। वरना तो फिर मैनिफेस्टेशन बिल्कुल आ ही नहीं पाएगी, या आएगी भी तो भी तुम्हें उसमें इंजॉयमेंट नहीं फील होगी, क्योंकि तुम हर एक चीज तो उसमें ही अपने आप ही क्रिएट कर रहे हो कि ऐसे होगा ऐसे होगा, और कुछ भी चेंज होगा तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ये तो नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन पे, विच इज एनर्जेटिक मिसमैच। अब ये वाला भी थोड़ा सा पिछले वाले से मैचिंग है, विच इज अगेन रिलेटेड टू द एनर्जी। इफ योर एनर्जी और वाइब्रेशंस इजंट in alignment with what you are trying to manifest, then also your manifestation will remain as a manifestation। इसके लिए एग्जाम्पल यही होगा मेरे लिए, तो मैनिफेस्टिंग अबंडेंस व्हाइल फीलिंग डीप सीटेड स्कैरिटी। मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि 1 करोड़ आएगा मेरे 1 महीने में कमाए, लेकिन अंदर से पता है, अंदर से वो फीलिंग है कि अभी भी 15,000 ही पड़े हैं बैंक में, या 20-30 रुपए ही पड़े हैं बैंक में। जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तभी ये दिमाग में थॉट्स आ रहे, तो इससे प्रोसेस खराब होता है। अगेन क्लियर मैसेज ही नहीं जा रहे हैं जब यूनिवर्स को, वो तो एनर्जी पकड़ रहे हैं ना आपकी। एनर्जी तो क्या है, वो तो क्वेश्चन मार्क हो रखी है, कंफ्यूज एनर्जी भेज रहे हो आप, तो कैसे मैनिफेस्टेशन सच होगी। अगर पर्सनल वे से दूं तो अगेन सोलमेट का ही दूंगी। आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं अंदर फील कर रहे हो कि आई डोंट डिजर्व टू बी लव, कुछ डाउट्स है अपने रिलेटेड कि क्या वो मेरी ये पर्सनालिटी पसंद कर पाएगा, ये होगा वो होगा, तो डाउट्स के साथ नहीं चल सकते आप। नेगेटिव एनर्जी में रह के मैनिफेस्ट तो नहीं हो सकता। अब करना तो है मैनिफेस्ट, चाहिए तो है चीजें, तो अब करें क्या। यू मस्ट हैव टू फॉलो इनर वर्क और शेडो वर्क, सो दैट यू कैन हील योरसेल्फ एंड गेट योर ट्रू सेल्फ, ताकि आपको पता लगे कि आप एक्चुअली में क्या हो, कितने अच्छे हो कितने बुरे हो। बुराइयां तो हर एक में होती है ना, अब हम हर एक की नजर में तो नहीं अच्छे बन सकते ना। अगर आप इनर वर्क और सेल्फ लव ऐसे ही फॉलो करोगे तो यू विल नोटिस दैट मैनिफेस्टिंग थिंग्स will not be your need, you will just manifest for enjoyment, to feel more loved, not to fulfill your need of love। एंड इसी में एक और चीज आ जाती है, जो लोग अगेन किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उनके साथ भी यही होता है कि आपकी एनर्जीज तो हाई वाइब्रेशन में है, तो आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो उनकी एनर्जीज आपसे अलाइंड है। हो सकता है कि वो लो वाइब्रेशंस में हो, तो इसीलिए आप लोगों की एनर्जी नहीं मैच हो रही, तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो पाती। तो मेक श्योर आप दोनों ही हाई वाइब्रेशंस में हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रीजन, कि आखिर है क्या, क्यों नहीं ये मैनिफेस्टेशन सच हो रही। नेक्स्ट रीजन इज कर्मा और लाइफ लेसन्स। अब ये मेरे साथ बहुत हुआ है, हाँ, which is sometimes the things you were manifesting were not coming true as you manifested। अगेन वही, बट हाँ वैसी कुछ सिमिलर सी आ रही है कि जिस इंसान को तुम चाह रहे थे या कोई सोलमेट वगैरह ऐसा ही कुछ, तो वो वैसा नहीं आ रहा, पर हाँ वो जो ट्रेट्स मांग रहे थे, वो जो एनर्जी मांग रहे थे वो वैसी है। ये कई बार इसलिए भी हैपन होता है, तुम्हारे साथ इसलिए भी होता है ताकि तुम ग्रो कर सको और अपनी रियल मैनिफेस्टेशन तक पहुंच सको। अभी जो लेसन तुम्हें सीखनी है, अभी जो करना तुम्हें करना है, मैंने पीछे भी बोला था, चेंजेस चाहिए अभी। अगेन वही बोलूंगी कि जो भी चीज तुम चाह रहे हो उसके लिए तुम्हें किसी तरीके का बनना पड़ेगा, किसी तरीके में ढलना पड़ेगा। तो उस चीज का तुम्हें बनाने के लिए, वैसा तुम्हें बनाने के लिए यूनिवर्स करेगी, एक्शंस लेगी। हो सकता है जो लोग तुम्हारी लाइफ में अभी आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि तुम उस मैनिफेस्टेशन तक पहुंच सको। तो एक्सेप्ट
वट एवर सो कमिंग टू यू। और कोशिश करो कि जो भी वो लेसन्स तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं, जो भी तुम्हें वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं, तुम उनको समझो और अपने पे अप्लाई करो। थोड़ा सा प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से भी बोल देती हूँ, लाइक तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई भी तुम्हारा प्रोफेशनल फील्ड है। अब तुम्हें पता है कि तुम अभी उतने ही काबिल तो नहीं हो, बिल्कुल अभी शुरू किया है तुमने कुछ भी करना, और तुम चाहते हो कि हाँ मुझे सक्सेस तो चाहिए, तो ऑब्वियसली तुम्हें सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी। अब हर एक सीढ़ी पे एक लेसन तो आएगा ना, एक सीख तो आएगी ना, ताकि तुम जब वहां पहुंचो, सक्सेस तुम्हें मिले, तो तुम तुम्हारे बेस्ट हो, तुम उसे अपने साथ हैंडल कर सको, उस काबिल हो, और उस चीज को अच्छे से आगे कंटिन्यू कर रख सको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ आ ही गया कि हो सकता है कि तुम्हारा कर्मा हो, ठीक है, अभी तुम्हें काफी सारे अपनी कर्मा क्लियर करने हैं, इसीलिए वो लोग तुम्हारे पास आए। ऑफकोर्सली कर्मा भी वही होता है, मतलब कोई भी लोग तुम्हें कार्मिक भी इसीलिए मिलते हैं ताकि तुम कोई चीज सीख सको। तो एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज और आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। अब बढ़ते हैं लास्ट रीजन की तरफ, इसके बाद हम लोग बोनस रीजन भी कवर करेंगे। सो द लास्ट रीजन इज इंटरनल रेजिस्टेंस और द हीलिंग इज नॉट डन। सेल्फ हीलिंग की बात कर रही हूँ। सो व्हेन यू डोंट हील योरसेल्फ और बी इनफ इन योरसेल्फ, डोंट रिलीज द पास्ट, पास्ट में जी रहे हो, बहुत इमेजिनेशन में जी रहे हो, और किसी के दिए लिमिटेड बिलीव्स में जी रहे हो, तो इससे मैनिफेस्टेशन रुकती है। क्योंकि पता है क्या होगा, तुम्हें अगर यूनिवर्स दे भी देगी ना जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो तुम उसे अपनी गिल्ट, अपनी जो भी फियर्स, एंजाइटी और इस सब के कारण छोड़ दोगे। हो सकता है तुम और लोगों की सुनने बैठ जाओ कि मुझे तो पता नहीं कि कैसे करें कैसे नहीं, इसलिए तुम सुनने बैठ जाओ और वो लोग तुम्हारा ना अच्छा चाहें या किसी भी रीजन से तुम्हें डाउट्स आ जाए, और तुम अपनी जो मैनिफेस्ट की हुई चीज थी उसे खो दो, तो इसलिए हीलिंग तो जरूरी है। और कई लोग तो ऐसे भी करते हैं, अब कोई नई चीज मैनिफेस्ट की थी वो मिल गई, फिर भी कोई पास्ट फीलिंग्स रख के बैठे हैं कि वो वैसे करके गया था, वो ऐसे हुआ था, कहीं फिर से भी ना हो जाए। तो दिस इज नॉट द थिंग, जो हो गया था वो हो गया था, अब उसे छोड़ दो। वो कुछ लेसन सिखाने आया था, वो उसे सिखा दिया, अब आगे वो चीज रिपीट नहीं होगी। अगर आपने लेसन सीख लिया है तो नहीं सीखा तो जाओ याद करो कि ऐसा क्या लेसन सिखाना चाह रहे थे। कोई तो उन्होंने चीज तुम्हें दिखाई होगी, कोई तो चीज में तुम्हें डाउट क्रिएट किए होंगे, तो वो क्या चीज है उसे समझने की कोशिश करो और रिलीज करो पास्ट में। और अगर वैसे ही हीलिंग नहीं हुई है सेल्फ डाउट से वैसे ही, तो कोशिश करो कि सेल्फ लव फॉलो करो, खुद में इनफ फील करो, ताकि तुम अपनी मैनिफेस्टेशन को पा सको। सच बताऊं तो ये बहुत अच्छा वे होता है, अगर जब तुम अपने आप में इनफ फील करने लग जाते हो और अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी नीड की तरह नहीं ट्रीट करते हो, तो मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से सच होने लग जाती है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, प्रोसेस बहुत जल्दी होने लग जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं बोनस रीजन की तरफ। अब ये सारा दिमाग का खेल है, मैनिफेस्ट तो हम लोग करने लग जाते हैं, बट स्टिल हम लोग अपनी रियलिटी को नहीं भुला पाते। सो फर्स्टली लेट गो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। ओल्ड सेल्फ इज जो आप अभी हो या जो आप कभी थे। एंड अगेन लेट गो ऑफ द अटैचमेंट टू द आउटकम। जस्ट बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो, बिल्कुल एक मस्त मौला वाली एनर्जी में, ना तो बहुत आगे का सोच रहे हो ना बहुत पीछे का सोच रहे हो, जो चल रहा है चलने दो और मैनिफेस्ट करते रहो। मैनिफेस्ट तो हम लोग करते हैं बट माइंड से क्लियर नहीं होता है, जैसा हमें अपना माइंड सेट रखना चाहिए वैसा नहीं रखता है। तो इस रीजन में मैं यही क्लियर करने वाली हूँ कि आप लोग कैसे अपने आप को अलाइन रख सकते हो विद योर मैनिफेस्टेशन। तो अक्सर हम लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आउटकम से कि ऐसा होगा, ऐसा चाहिए, और ऐसा सोलमेट्स वाला जो होता है उसमें तो अक्सर लोग हो जाते हैं बिना सोचे समझे, मतलब ऑब्वियसली अटैचमेंट्स होने लग जाते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमने मैनिफेस्ट किया जोरों शोरों से, बिल्कुल उसी माइंडसेट के साथ, एंड देन हमने उसको भुला दिया, बिल्कुल लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया उस चीज़ को, और अपनी डेली रूटीन में आ गए, विच इज द प्रेजेंट। अब नेचर को ना रश करने की आदत नहीं। तुमने बीज बो दिया है, तुमने पेड़ चाहिए, तुम्हें तुमने पेड़, तो ये तो नहीं है कि कल ही पेड़ उग भी जाएगा और बिल्कुल बड़ा होके सब कुछ फल वल देने लग जाएगा। एवोल्यूशन तो होगा ना, उसका टाइम तो लेगा, वो थिंग्स विल हैपन। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रोज जाओ वहां पे और देखते रहो कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, कितना टाइम लेगा। तुमने तुम्हारा काम कर दिया ना, तुमने बीज बो दिया ना, तुम्हें मैनिफेस्ट करना था, तुमने वो कर दिया ना, तुमने यूनिवर्स को मैसेजेस भेजने थे कि हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो तुमने अपना काम कर दिया ना। अब तुम छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा। अगर वो चीज तुम्हारे लिए सही होगी तो वो होगी। अगेन यही बात कहूंगी, एनर्जी, इंटेंशन, यही सब कुछ यूनिवर्स को समझ आता है। तो इसको पॉजिटिव रखो, इसको कंप्लीटली
उस टाइम पे अलाइन रखो जब तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो टोटली तुम्हारा फोकस तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पे होना चाहिए। ये नहीं कि तुम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें तुमने किसी अपने पास्ट पर्सन को भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि उसमें वो हमें देख रहा है, हमें ऐसे है वैसे है, उनके सामने हम जस्ट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, दैट पर्टिकुलर थिंग टू बी मैनिफेस्टेड, एंड देन सिंपली सरेंडर। भूल जाओ जैसे ऐसा कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि अगर तुम याद रखोगे तो तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते रहोगे और फिर रिजल्ट यही आएगा कि तुम नेगेटिविटी की तरफ चले जाओ, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाओगे कि अभी नहीं सच हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और ये कंट्रोल करने की आदत ना ईगो की होती है, तुम्हारी नहीं। तो ईगो को निकालो, डोंट थिंक ऑफ दिस थिंग कि वो कैसे आएगी कैसे नहीं, लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो एज द वे इट वांट टू। जस्ट बी देयर, एक्सेप्ट द चेंजेस, जो भी जैसा भी हो रहा है उनको समझो और एक्सेप्ट करते जाओ। डोंट बी स्टिक टू एनी पर्टिकुलर मैनर। अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि तुम जो चीज मांग रहे हो बस वही एक चीज है, ठीक है, कि इस तरीके से आएगी उस तरीके से आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। यूनिवर्स विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर, वो क्विकेस्ट वे फाइंड करेंगे जिससे तुम्हें तुम्हारी मैनिफेस्टेशन मिले जल्द से जल्द। अब तुम कोई जो वे सोच रहे हो वो शायद हो सकता है बड़ा हो, उनके लिए सही ना हो सकता है उसमें कुछ और भी चीज हो सकती है। तो बी ओपन, जो भी चीज जैसे भी आ रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। अगेन वही चीज बोलूंगी, माइंडसेट इज एवरीथिंग, क्लियर इट, बी पॉजिटिव फ्रॉम देयर। You stop your manifestation every time when you begin to think of all thoughts and keep rushing that nothing is happening or happened yet. Then by this act, you by yourself create an obstacle for your manifestation. क्योंकि तुम तो नेगेटिव में चले गए ना, तुम्हारी एनर्जी तो नेगेटिव हो गई। अब वो आने ही वाली थी मैनिफेस्टेशन तुम्हारे पास, पर नहीं, तुमने नेगेटिविटी दे दी अपनी। चीजें तो तुमने पॉजिटिव रह के की थी ना मैनिफेस्ट, अब तुम नेगेटिव ऑरा में हो गई तो वो कैसे आएगी तुम्हारे पास? अगेन वही एनर्जेटिक मिसमैच होगा। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन योरसेल्फ that everything that I manifested will be my reality. This will be sure going to come in my life. And in universe even, have an unshakable faith कि जो भी यूनिवर्स कर रही है वो मेरे लिए कर रही है। उनको कोई मजा नहीं आ रहा किसी भी चीज में, अपने मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं देते हैं, तुम्हारे कर्मा के ये मिलते हैं बस। उसमें भी तुम्हें लेसन ही मिलते हैं जो तुम्हें आगे चल के बहुत हेल्प करते हैं। So have an unshakable faith in universe and in yourself. And with that, I mean stop looking up in the reality every day. Things will happen. This is the only thought you should be with. So with this, you should understand that whatever happening is for your highest good, and whatever that will happen to you will also be for your highest good. So don't rush and say yourself, I will not rush. I will be patient and embrace my today's inner work. Keep going. तुम खुद को फॉलो करो ना। तो ऐसा बहुत बार ही होता है दैट यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करना शुरू करती है। अब सपोज कर लो तुमने कुछ भी मांगा, तुमने कोई चीज़ मांग ली, तो यूनिवर्स को समझ आ गया कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, अब वो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करने लग जाती है। बट जैसे ही चेंजेस होते हैं तुम्हारी रियलिटी शेप हो जाती है और तुम चाहते नहीं होते हो ऐसा हो। अब कुछ चाह रहे हो अपनी लाइफ में ऐड करना तो कुछ तो बदलेगा ना, क्योंकि अगेन तुम्हें कुछ सीखना भी है, वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में हमेशा है, उसके लिए भी तुम्हें रेडी होना है। तो चलो एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज इफ यू हैव अ जॉब ऑफ 1 लाख रुपीज, नाउ यू मैनिफेस्टेड द जॉब ऑफ 5 लाख रुपीज एज पर अ मंथ, ठीक है। नाउ द थिंग्स विल बिगिन टू हैपन एज द यूनिवर्स विल। नाउ समथिंग वेंट रॉन्ग एंड यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम दैट करंट जॉब। तुम्हें तुम्हारी करंट जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब तुम बिल्कुल डगमगा गए, भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और कोई तो साधन है ही नहीं मेरा कमाई का। एक तो जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था वो तो सच हुआ नहीं, ऊपर से जो मेरे पास हाथ में था वो भी चला गया। अब फ्रॉम द यूनिवर्स परस्पेक्टिव इट इज द करेक्ट वे, बिकॉज अगर तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचना है तो कहीं से तो निकलना पड़ेगा। हो गए ना, अपने ओल्ड सेल्फ से अटैच हो गए, गलती कर ली यहाँ पे। तुम्ही ने तो मांगी थी ना 5 लाख की जॉब, फिर जब यूनिवर्स ने चाहा कि तुम उस चीज तक पहुंचो तो तुम अपने पैर पीछे कर रहे हो, तो उनकी क्या गलती हो गई? और हम उन्हीं को गालियां देने लग जाते हैं कि आप तो काम ही नहीं करते हो, हमारे लिए तो कुछ अच्छा चाह ही नहीं रहे हो, जो था वो भी छीन लिया और जो देना चाह रहे थे वो भी नहीं दिया। सो अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है, बी ओपन एंड embrace whatever is happening as a service to your highest good. तुम्हारे लिए काम होगा। अगर जॉब छूट गई तो कहीं मिलेगी भी तो सही ना, ट्राई करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे तो मिलेगी, जरूर होगा। सो चेंज योर बिलीफ सिस्टम,
keep positive thoughts and understand this one thing that everything is happening for your highest good. जो आ रहा है उसे आने दो, जैसे आ रहा है उसे वैसे आने दो। अपॉर्चुनिटीज आती ही इसलिए है ताकि हम ग्रो कर सकें, हम लोग वहां पहुंच सकें जहां हम चाह रहे थे अपने आप को। अगर तुम किसी भी रीजन से अपने पैर पीछे करोगे तो ऑब्वियसली फिर तो कहाँ ही सच हो पाएगी चीज, फिर तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो ना। वेल, एवरीथिंग हैपेंस इन अवर लाइफ वर्क्स फॉर अस, मे बी टुमारो वी विल गेट इट और इन द नियर फ्यूचर। पर पता तो लगता है हमें कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ हुई थी, हमने ये चीज़ सीखी और आज इसी के बदौलत हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ है। एक लास्ट में थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगी। मैनिफेस्टेशन इज अ ब्लेंड ऑफ माइंडसेट, बिलीफ एंड एक्शंस। When these things or these elements are not in harmony, you will not get the desired outcome you were manifesting. और जो मैंने एक टिप दी थी बीच में, which is if you follow self love, if you be enough in yourself, then this boosts your way or the process of manifestation. Hope this video helped you. I enjoyed the most. I hope everyone get their point, their reason why the manifestation was not working for them, and I hope you guys will subscribe to me. You guys will motivate me to keep working and to keep telling you guys even the secrets of life which I uncovered in my life. Be grateful, be happy. Thank you so much for watching the video. I hope you learned something from this video. So be assertive, be aligned to your true self. Tata. Have a great day. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट या कोई भी रीजन क्लियर ना हो तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगी। और इससे डिफरेंट तुम्हारी लाइफ में कोई सिचुएशन हो रही है, तुम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कुछ रीजंस तुम्हारे नहीं हुए क्लियर, तो फिर भी कमेंट करना, आई विल रिप्लाई।